Good morning, class. In today's class, we will study about Gauss law in magnetism. Already you have studied in electrostatics about Gauss law in electrostatics. In the same way, there is Gauss law in magnetism also. According to this law, net magnetic flux phi b through any closed surface is always zero. Closed surface की जो definition है वो हमने already study की है. For example, surface possessed by a cube or cuboid or sphere or cylinder, they are considered as closed surface. Closed surface हमेशा कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, अपने आप में कुछ वॉल्यूम possess करते हैं. Okay, so जो भी 3 dimensions में हैं surfaces, generally they are considered as closed surfaces. So net magnetic flux phi b through a closed surface is always zero. So first of all, for application of Gauss law, the closed surface is compulsory, and for this closed surface net magnetic flux will be always zero. So suppose we have taken a surface, this is a closed surface, and we are taking a small element ds on it. The area vector is perpendicular to surface and it is placed in this magnetic field B. The angle between B and ds, it is theta. Area vector ds and magnetic field vector B, the angle is theta. It means if net magnetic flux is zero, it means the number of magnetic lines leaving any closed surface is always equal to number of magnetic lines entering it. आपको फ्लक्स के लिए बताया था that inward flux is taken as positive whereas outward flux is taken as negative. So net flux will be zero because number of magnetic lines entering in the surface is equal to number of magnetic lines exiting the surface. So the net outward movement will be zero. So net flux will be zero. Okay. So we have considered S is a closed Gaussian surface placed in a uniform magnetic field B. ds is a small area element on it. So a small amount of flux through it, d phi b, it is b dot ds. Already we have studied about definition of flux. It is dot product of magnetic field and area element. So net flux through all area element is given by, अगर आपको closed surface पर overall surface से flux find करना है, so we will take the integration. This sign indicate the closed surface integration. That surface is closed surface b dot ds, and it will be equal to zero. Okay. So from this law, what can you predict? First thing, monopole or isolated magnetic pole do not exist. Just like charge, जैसे चार्ज में प्लस चार्ज पॉसिबल है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल, और सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड. सिमिलरली फॉर नेगेटिव चार्जेस मैग्नेटिक लाइंस आर रेडियली इनवर्ड. तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता है तो उस केस में फ्लक्स या तो सिर्फ आउटवर्ड होगा या सिर्फ इनवर्ड होगा. नेट फ्लक्स इज जीरो है. इसका मतलब यह है दैट नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस एंटरिंग मींस टुवर्ड्स द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अवे फ्रॉम द सरफेस. तो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सिंगल पोल होता तो मैग्नेटिक लाइन सिर्फ या तो एंटर करती या फिर सिर्फ आउटवर्ड मूव करती. बट यहाँ दोनों हैं, इसका मतलब यहाँ पर दोनों पोलरिटी एग्जिस्ट करेंगी. मैग्नेट्स हमेशा डाइपोल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. So magnetic poles always exist in unlike pair. Unlike means dual polarity, positive or negative, north or south, और पेयर में, एंड इक्वल स्ट्रेंथ बिकॉज नंबर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ का मतलब ये है दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ सेम है, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस जो एंटर कर रही हैं और जो मैग्नेटिक लाइंस एग्जिट कर रही हैं दोनों के नंबर्स इक्वल हैं. नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस हमेशा आउटवर्ड मूव करती हैं, साउथ पोल से हमेशा लाइंस इनवर्ड मूव करती हैं. तो ऑब्वियसली नंबर्स दोनों के इक्वल हैं, तो दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी. In electricity, isolated free charge plus Q or minus Q is possible, but isolated free pole is not possible in magnetism. Net force, net flux जीरो है. इसका मतलब नॉर्थ पोल के कारण जितनी मैग्नेटिक लाइंस एग्जिट करेंगी, साउथ पोल के कारण उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस एंटर भी करेंगी, और दोनों पोल एक ही टाइम पर एग्जिस्ट करेंगे. ओके. नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एलिमेंट्स. The magnetic elements are basically group of quantities. It is the combination of quantities
required to describe the magnetic field of earth at any place completely. किसी भी प्लेस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जितनी भी क्वांटिटीज रिक्वायर्ड हैं, इन बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, उन सभी क्वांटिटीज के सेट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स. देयर आर 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. फर्स्ट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, it is represented by theta. Magnetic inclination or angle of dip, it is delta. Horizontal component BH of Earth's magnetic field. And we will study one by one all 3 elements. And in examination generally numericals are asked on based on topic 2 and topic 3. इन तीन दोनों पर based हमेशा न्यूमेरिकल आता है, तो ये important point है. First is magnetic declination. मैग्नेटिक डिक्लिनेशन स्टडी करने से पहले हम 2 एक्सिस के बारे में स्टडी करेंगे, ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस. ज्योग्राफिक एक्सिस जो अर्थ की ज्योग्राफिकली पोल्स हैं, नॉर्थ डायरेक्शन एंड साउथ डायरेक्शन, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, दैट एक्सिस इज नोन एज ज्योग्राफिक एक्सिस. द एक्सिस अबाउट विच अर्थ रोटेट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक एक्सिस. सेकेंड इज मैग्नेटिक एक्सिस. अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर है, तो किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस के अलोंग अपने आप को अलाइन करता है. तो लाइन अलोंग विच ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस. तो कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जिस डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को अलाइन करता है, दैट एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस. फिर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है? किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच में जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. द स्मॉल एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट प्लेस. वो उस जगह का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होगा. ओके, तो आपको नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है. हम एक मैग्नेट को ले सकते हैं, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें, और फ्रीली सस्पेंड करने पर वो जिस डायरेक्शन के अलोंग अपने आप को रेस्ट में लाता है, अलाइन करता है, वो मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगी. मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा, दैट विल बी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. नाउ 2 more definitions are there. One is geometric or geographic meridian and second is magnetic meridian. ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, इससे पास होने वाला जो वर्टिकल प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन. ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक मेरिडियन. आपने किसी भी प्लेस पर ज्योग्राफिक एक्सिस लिया, उस ज्योग्राफिक एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्लेन कंसीडर करें, दैट प्लेन इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन. सिमिलरली ए वर्टिकल प्लेन passing through magnetic axis is called magnetic meridian. Magnetic axis के जो perpendicular plane होगा, that is magnetic meridian. I have shown it here. ये आपका magnetic axis था. इस magnetic axis से ये जो perpendicular plane है, this is magnetic meridian. Similarly ये geographic axis था. इस geographic axis से पास होने वाला ये जो perpendicular plane है, that is geographic meridian. अब geographic meridian और magnetic meridian के बीच का जो एंगल होगा, that is called magnetic declination. So magnetic declination is the angle between magnetic meridian and geographic meridian at that place. Now ये magnetic meridian है. magnetic meridian इस surface के along है, तो ये उसकी horizontal direction होगी और ये उसकी vertical direction. Next is angle of dip or magnetic inclination. Now ये अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस है, तो अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है. ओके, किसी भी प्लेस पर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो अलोंग द टेंजेंट होती है. आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, तो वर्टिकल डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगी. इस प्लेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसके अलोंग है. ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किसी भी प्लेस पर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल ड्रॉ करेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, वो क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप. सो एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय
द डायरेक्शन ऑफ अर्थ्स नेट मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अर्थ का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल ट्रेस करता है, दैट एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप। ओके, नाउ एंगल ऑफ डिप वेरीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस मैग्नेटिक पोल की बात करूं, इस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो आप बताएं यहाँ एंगल कितना बना, 90 डिग्री। यू कैन सी इट हियर। एट पोल्स पर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, सो दिस इज एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री। अगर मैं इस इक्वेटर की बात करूं, तो इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो एट पोल्स एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, वेयर एज एट इक्वेटर एंगल ऑफ डिप इज 0 डिग्री। ओके, एंड द लास्ट कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डेफिनेशन से क्लियर है, अर्थ के रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का आपको कंपोनेंट लेना है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यू कैन सी इट हियर आल्सो। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये हर प्लेस पर रोटेट करता रहेगा, ये हमने यहाँ प्लेन में दिखाया है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी, उसी के परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन BV होगा और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B होगा। तो B और BH के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप है। सो द कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स नेट मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होगा, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यू कैन सी दैट दिस इज magnetic meridian. Okay, so it is represented by BH. I have drawn it here. This is horizontal direction, this is vertical direction, this is Earth's resultant magnetic field, this is angle of dip. रिजॉल्व करें तो B का कंपोनेंट जो BH के अलॉन्ग होगा वो होगा B cos डेल्टा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा B sin डेल्टा। सो BH इज इक्वल टू B cos डेल्टा, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके सम कर दूं, यू विल फाइंड द रिजल्ट एज नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर एंड tan डेल्टा इज इक्वल टू BV अपॉन BH परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इससे आप एंगल ऑफ डिप फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स BV अपॉन BH। V इज वर्टिकल कंपोनेंट, H इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। नाउ अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पर डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वहां हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाएगा बिकॉज cos 90 0। वर्टिकल कंपोनेंट B के इक्वल होगा। इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर पर डेल्टा 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट B के इक्वल होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। So this is all about Earth's magnetic element. That's all for today. Have a good day.